कढ़िया जांदियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ शिव जी बनता, कोई श्री राम जी बनते। कुछ टाइम ਲਈ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਾਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। आ गया था कि घर में आटा जो है ना वो भी नहीं था। मेरी एक कार मैंने बेची थी, उसमें से 60,000 रुपए की मैंने कार बेची, तो 20,000 रुपए तो आटे दाल में चले गए थे। एक चीज़ आ वीर ने साडे ने आख्या भी सानू पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा हत्थां दी मैल हुंदा है। सानू एक प्रोग्राम दिओ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਗਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਜਾਗਰਣ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਗਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੁਨਾ, ਕੈਮਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਨੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰੁਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਈ ਦਿਸਿਆ ਅਮਰਚਰਨ ਜੀ, ਗਾਇਕ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਲੀ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਮਰਪਾਲ ਅਮਰਚਰਨ ਜੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਭਾਜੀ ਗਾਇਕੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗਾਇਕੀ? देखिए जी धुन्ना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आपने हमें इस लायक समझा कि आप रुके और इतना मान सत्कार आपने दिया है। आज़ाद आवाज़ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो जैसा कि आपने पूछा है कि आज की गायकी, तो आज की गायकी सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आजकल चमक दमक को पसंद किया जा रहा है। कई ऐसे मेरे मित्र हैं जो सिंगर हैं, वो हम देखते हैं कि 5-7 उनके साथ बाउंसर होते हैं, मोटे तगड़े काले कपड़े वाले, मोटे मोटे बाउंसर लेके चलते हैं। या ये कहूँ कि जागरण कीर्तन के नाम पे कई मेरे मित्र ऐसे हैं जो भजन गायक हैं, वो स्टेज पे जब भजन कीर्तन करने के लिए पहुंचते हैं तो उनके साथ नाचने के लिए लड़कियां होती है। तो आजकल उनको ही ज़्यादा पसंद किया जाता है जो लड़कियां रखते हैं और बहुत ज़्यादा चमक दमक रखते हैं, गले में चैनें होती है, हाथों में अंगूठियां हो, अच्छे लंबे बाल हों, तो ऐसों को शायद मुझे लगता है पसंद किया जाता है। तो लोगों की जैसी भावना, जैसी सोच है, वो उसी प्रकार करते हैं। और हमने तो बिल्कुल सादा सिंपल और प्रभु गुणगान जब करना शुरू किया है तो आज तक वही सब कर रहे हैं। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, सिर्फ वीडियो देखते हैं, नचते टपते। हाँ बिल्कुल जी, ये बात आपने बहुत उचित और सही कही है कि पहले लोगों का रुझान था, आस्था था, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो भगवान पे इतना विश्वास था कि जागरण कीर्तन जब होता था तो मैंने खुद
देखिए, मैं लगभग 1999 से पार्टी बना के और खुद कीर्तन भजन करने लगा हूँ। तो पहले लोग भजन सुनते थे, भाव विभोर होकर के सुनते थे और फरमाइश भी करते थे कि हमें वो भजन सुनाइए, हमें वो भजन सुनाइए। पर आजकल जाते ही पहले ये होता है कि हमें ना कोई नाचने वाला हो, हाँ, फिल्मी तर्ज, बढ़िया तर्ज हो और नाचने वाला हो। तो नए नए हैं जो नाच पे ज्यादा ध्यान देते हैं, या फिर दिखावा ज्यादा रह गया है, आस्था कम हो गई है, दिखावा ज्यादा हो गया है। लोग झांकियां बुलाते हैं, तो उनके अंदर कोई भगवान कृष्ण बना है, कोई राधा बनी है और कोई सुदामा बन रहा है। तो ये, मैं तो ये समझता हूँ कि ये हम भगवान का है ना अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो ये झांकियां कर रहे हैं और नाटक जो ये कर रहे हैं, तो ये भगवान की एक छवि बनाते हैं, परंतु ये नहीं सोचते कि भगवान कहाँ और ये छवि हम बना रहे हैं, तो ये उचित है या नहीं, सोचते नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। तो अगर हम जागरण कीर्तन करवाते हैं, करते हैं, तो सिर्फ हमें प्रभु सुमरन ही करना चाहिए, सिर्फ भगवान का गुणगान ही करना चाहिए। एक चीज़ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਣਦੇ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ है ना। वो कितनी बेअदबी हो रही है, पर लोगों का उधर ध्यान नहीं है। बिल्कुल, मैं आज भी, देखिए, वैसे तो शुरू से ही मैंने हमेशा इस बात को पहले रखा है। जब भी कोई मेरे भाई बंधु मित्र जो मेरे पास कीर्तन बुक करने के लिए आए हैं, तो मैं हमेशा उनसे यही कहता हूं कि आप झांकी ना करो, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में झांकी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं जी, झांकी के बिना चलेगा ही नहीं। तो देखिए, हमें भी रोजी रोटी कमानी होती है, तो उस मजबूरी के चलते हमें झांकी का आयोजन जो है वो करना पड़ता है, झांकी वाले बुलाने पड़ते हैं। परंतु ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि झांकी वाले जो हैं, कई हैं ऐसे जो यही काम करते हैं कि अंदर भगवान का रूप बनाते हैं, नाचते हैं और उछल कूद करते हैं। जो मुझे कहीं ऐसा भी लगता है कि उछल कूद करते करते वो कई माताओं बहनों की कोई गोद में भी बैठ जाता है, कोई गिरता है, पड़ता है और उस गरिमा को भूल जाते हैं। और वाकई सही बात है, वो बाहर जाके बीड़ी तो एक अलग चीज है, वो और भी नशा जरूर करते होंगे। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਾਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਨੂਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल जी, एकदम सही है ये बात। जब वो झांकी कर रहा है, उस समय उसने रूप अगर भगवान शंकर का लिया हुआ है, तो लोगों की आस्था वही होती है। देखिए, कीर्तन में जब कोई झांकी लेकर के आता है, कोई रूप धार करके आता है भगवान का, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, राधा हो या शंकर भगवान हो, तो सभी माताएं बहनें, खास करके गांव में मैंने देखा है, सभी उठ उठ के, जो श्रद्धा अनुसार, कोई 10, कोई 20, कोई 50 रुपए तो चढ़ाते चढ़ाते हैं, उनके पाँव को छूते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उम्र भी छोटी होती है और किसी लिहाज से भी वो भगवान तो नहीं होता है, इसलिए वो जो पैरों को छुआते हैं वो भी अच्छी बात तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये है तो गलत। ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? देखिए धुन्ना साहब, वैसे तो हमेशा ही, क्योंकि एक कलाकार जो होता है ना, जो खास करके ये भजन गायक हैं, वो बिल्कुल जैसे फर्श से ही स्टार्ट होते हैं और उनकी जीवन में संघर्ष कूट कूट के भरा रहता है। अब किसी के हो ना हो, मैंने अपने जीवन में यही देखा है। मैंने जब से होश संभाला है, तब से आज तक संघर्षरत हूँ और आगे भी संघर्षरत ही रहूंगा, क्योंकि जो रुझान है वो ही ऐसे हैं। अब जागरण कीर्तन जो होते हैं, तो बड़े बड़े कलाकार जो हैं उनको बुलाया जाता है और अहमियत भी उन्हीं को दी जाती है जो वो बाउंसर रखते हैं या लड़कियां रखते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। हम
अपने जीवन में हमने और हमारे गुरुजी ने हमेशा हमें सादगी से और विधिवत प्रोग्राम जागरण कीर्तन करने के लिए जो गुर दिए हैं, हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। पीछे जब लॉकडाउन लगा तब तो हालात ऐसे हो गए थे कि जागरण कीर्तन सब बंद था। उसके बाद सरकार की नीतियां भी ऐसी रही कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाथ थोड़ा मेरा तंग है, कि खुद का कोई काम करो। तो मेरे पास इतना कुछ नहीं था और एक नौबत तो ऐसी आई थी, मैं आपको बताऊं, आप कहोगे कि चैनल पे ऐसी बातें, तो सच्चाई जो है वो सच्चाई है। ऐसा टाइम आ गया था कि घर में आटा जो है ना वो भी नहीं था। तो मैंने अपनी घरवाली से कहा था कि मेरे को एक इनाम में सोने की अंगूठी मिली थी कि वो अंगूठी लाओ। तो घरवाली ने वो अंगूठी नहीं दी और मेरे को अपने उसने जो बचा के रखे वो 1500 रुपये दिए कि ये आप 1500 रुपये हैं, कुछ लाना है सो ले आओ, बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद मेरी एक कार मैंने बेची थी, उसमें से 60,000 रुपये की मैंने कार बेची, तो 20,000 रुपये तो आटे दाल में चले गए थे, 40,000 रुपये बचे। उन 40,000 रुपयों से फिर मैंने एक छोटी सी दुकानदारी, ये सोच के कि राशन है, अगर दुकानदारी चलती है तो ठीक है, नहीं तो घर खाने के लिए तो ये पड़ा ही रहेगा। तो वो 40,000 रुपये से मैंने छोटी सी दुकानदारी शुरू की, परचून की, और उसी से रोजी रोटी चलती रही। अब थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का कोई कीर्तन जागरण जो है सो आ रहा है, तो उससे कुछ राहत है। वैसे कई कहते ना भी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਡਾਊਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ कई परिवार अपने ਜਿਹੜੇ शहर ਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। बिल्कुल सही बात है जी, एकदम। अगर क्योंकि एलनाबाद भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटा सा है, बहुत बड़ा है, और इसमें मेरे जैसे बहुत कलाकार हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तो अगर शहर, मेरा शहर एलनाबाद ही अगर ये चाहे कि ये कलाकार कुछ आगे बढ़े, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को पैसा दीजिए, नहीं, आप सिर्फ काम दीजिए। जागरण कीर्तन करवाने हैं तो एलनाबाद के जो हैं उनको आप मौका दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए। अगर 2 पैसे भी उनको देते हैं तो वो घर की घर में रहते हैं, उनका परिवार चलता है। तो मैं तो यही विनती करूँगा सभी से कि वे आप अगर सहयोग करना चाहें तो काम दीजिए, पैसे नहीं। मदद काम से होगी, काम ही काम को फिर बढ़ावा देगा। ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਬਾਉਂਸਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਪਾਏ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਬਾਲ ਬਾਹ ਨੂੰ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਲਾਂ ਜਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? देखिए साहब, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ये सोचे कि भी मेरा नाम ना हो, इज्जत ना हो, पैसा ना हो, परंतु कुछ आत्मा की बात होती है। हमने कभी ये नहीं सोचा है कि भी हमारे भी बाउंसर हों या सोने की चेन हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा है। हमने सिर्फ ये सोचा है कि बढ़िया हमारा जो है वो इज्जत हो, एक दूसरे से प्यार प्रेम रहे, सभी हमें जाने पहचाने, सिर्फ इतना ही हमने सोचा और इतना ही चाहिए। ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ? वैसे तो गीत बहुत हैं और एक से बढ़कर एक हैं, पर मेरे मन को जो भाता है, मुझे जो अच्छा लगता है, वो अपनापन फिल्म का एक गीत है। वो अक्सर जब भी मैं महसूस करता हूँ कुछ या उदास होता हूँ तो उसको गुनगुना लेता हूँ, बाजे पे गुनगुना लिया करता हूँ। आदमी आदमी
आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। की कहना चाहूँगा शहर वासियों? शहरवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि शहरवासी मेरे बहुत अच्छे हैं और सभी एक दूसरे का सहयोग करें। जो मेरे जैसे हैं उनको अगर आप सपोर्ट करें तो उनका घर परिवार सब अच्छे से चल सकता है। और मेरे जैसे बहुत से गाने वाले हैं, आप सभी उनकी मदद कीजिए, उन्हें प्रोग्राम दीजिए, जागरण कीर्तन उन्हीं से करवाए। दोस्तों वीडियो ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਗਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਜਾਗਰਣ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਗਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਆ ਜੋ भी करना ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा धुना साहब, लॉकडाउन के समय में मुसीबत का समय था, परंतु 3 इंसान ऐसे हैं जिनको मैं भुला नहीं पाऊंगा। क्योंकि आज जब आप आए हो और आपने ये बातें छेड़ी हैं तो मुझे है ना उन तीनों व्यक्तियों का बहुत बहुत आभार और मैं हमेशा उनका धन्यवादी रहूंगा। एक हमारे अलनाबाद में है मनीराम जी गुप्ता, जो दवाइयों का काम है उनका मेरे पास फोन आया उस टाइम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे पता है कि अब तुम गाने वाले जो हो ना, जागरण लगाने वाले हो, तुम्हारे पे मुसीबत है अब, तो तुम चिंता मत करना। अगर 20-50 हज़ार रुपए की ज़रूरत हो तो तुम मुझे फ़ोन करो या मेरे पास आ जाओ। तो मैंने कहा ताऊ जी अभी ऐसा नहीं है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर आऊँगा। तो नंबर 1 वो इंसान। दूसरा हमारे प्रवीण जी पारिक हैं, मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। वो पैसे लेकर के मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि तेरा बड़ा भाई हूँ और मुझे पता है जैसे हालात हैं, तो ये मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब मुझे नहीं पता वो 1 लाख रुपए थे कि 2 लाख रुपए थे, कि ये 1 लाख 2 लाख रुपए हैं, ये रख लो और जो काम है वो कुछ बढ़ाओ, कुछ काम आगे काम आएगा। तो अब उस आदमी को मैं कैसे भूल सकता हूँ उसका बहुत बहुत मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और तीसरे मेरे मित्र हैं एक भंवरलाल, जो कभी दूध का काम किया करते और हमारे घर दूध डालने आते थे। आज उनके पास धन है, मालिक ने दिया है। भंवर का फोन आया है कि भाई अमर अब मेरे पास कुछ पैसों का जुगाड़ है, तो अगर भाई 50,000 लाख रुपए तुम्हें चाहिए तो मैं तैयार हूँ, ये लेके भाई मेरे कोई काम अगर करना चाहते हो तो करो। पर मैंने यही सोचा था कि मैंने अगर जागरण कीर्तन सच्चे मन से किए हैं तो हे मालिक मेरे को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने देना, मुझे काम दे। मैं कर्म से पीछे नहीं हूँ, कर्म करता हूँ, करता रहूँगा। तो जैसा भी मेहनत मेरे से हुई है मैं वो मेहनत आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और अपने शहरवासियों को जब भी मेरी जहाँ भी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।